to all. Ronak, am I audible? Yes, you are audible, Tejasvi. Okay. I, Tejasvi Patnaik, IEEE YCC Student Branch Brand Ambassador of PES Day 2021, welcomes you all in today's webinar. On April 22nd, 2008, the Power Engineering Society changed its name to the Power and Energy Society to focus on helping the environment and the society. This day has been officially commemorated as PES Day for the past 3 years. PES Day goal is to engage the volunteers with PES history and 5 PES pillars of the More Power to the Future vision. They are advancing global participation, educating the future workforce, industry activity trends, standard leadership, participating in regulatory initiatives. The PES is one of the oldest and largest societies under the IEEE umbrella. PES provides one of the largest and prestigious forums to share the latest developments in the electric power industry and the benefits that may provide to society in general, as well as to discuss how our members can contribute to addressing existing and emerging technology changes. This webinar is counted towards celebrating PES Day 2021. We all know that, and if not, we should know this. Climate change is perhaps one of the largest problems humanity has faced. Our world is changing faster than ever. Being the society that governs the engineering aspect of energy production that has resulted in greenhouse gases and global warming, we must educate everyone on the solutions and technological developments that are happening to slow down this issue. Thus, the theme for the fourth IEEE PES Day is Clean Energy Revolution. I anticipate your active participation today. I now request Devang Bhalerao to please introduce today's speaker. Okay, am I audible? Yes, Devang, you are audible. Thank you, Tejasvi. Very good and warm morning to you all. As we all know, as Tejasvi just explained, PES Day is being celebrated this month of April 2021, and we at IEEE YCC Student Branch are back with another amazing and interactive webinar and a very fun activity for you guys. Greetings to you all. I am Devang Bhalerao, Vice Chair at IEEE YCC Student Branch, and I will be your host today. Today we will be having a session on clean energy innovation to be covered by Mr. Nanu Jagdambar. Mr. Jagdambar is an application development associate at Accenture India. He is also the founder of Novel Technology Private Limited, and I'm very proud to say he's an alumnus of our very own institute, that is YCC. Today he will be speaking on clean energy and innovation and how we can adopt clean energy, advantages of clean energy, and the speaker's personal innovations related to clean energy. So I welcome you all, guys. I welcome you, sir, and I request you all to please mute your mics and camera feeds and let sir guide us through an amazing session. Over to you, sir. Yes, thank you, Devang, for introducing me and give me opportunity to talk on the clean energy. So, good afternoon all. Hope सब अच्छे होंगे अपने घर पे. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. I have a little request to make. We are making this an interactive session. So whenever sir asks you something, you can reply in the chat box. Okay, let's keep it alive. Yes. Thank you, Devang. So आज हम बात करने जा रहे हैं क्लीन एनर्जी एंड उस पे जो रिलेटेड मेरे इनोवेशंस है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. सो आज जो सेशन है वो एक ट्रेडिशनल सेशन नहीं है, ये एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए. मीन्स मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ पे बात करने का. सो आज जो भी मैंने इस कुछ दिनों में किया है, कुछ इनोवेशंस किए हैं क्लीन एनर्जी से रिलेटेड एंड बहुत कुछ है, मैं ट्राई करूंगा कि उसमें से कुछ नॉलेज आपको दे पाऊँ. सो मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान देकर ये सुना तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा ये. लाइक
सबके मन में कोई ना कोई आइडिया रहता है कि हाँ मतलब इस पे कुछ वर्क करना चाहिए, या कोई भी एक आइडिया रहता है उस पे फाइनल प्रोडक्ट तक जाने तक जो भी जर्नी मेरी थी वो मैं शेयर करूंगा, ताकि आपको भी कोई आइडिया रहे तो उसका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है या फिर फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे अपन पहुंच सकते हैं, इस पे आज डिस्कशन होगा। सो बीच में किसी को कुछ भी डाउट रहा तो फ्रैंकली आप अनम्यूट कर सकते हो और डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है, कोई कंफर्म कर सकता है? Yes, sir. Okay. So, I'm Nanu Jagdamwar, recent alumni of YCCE, and I'm founder of Novel Technologies, and recently I'm working in Accenture as a Application Development Associate. So, first बात करते हैं क्लीन एनर्जी पे। Okay. So, अभी इसके पहले भी आपके कुछ सेशंस हुए हैं क्लीन एनर्जी पे, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि क्लीन एनर्जी क्या होता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि क्लीन एनर्जी एक्चुअली होती क्या है? आप अनम्यूट करके बता सकते हो। Energy during production which does not cause any pollution to the environment. ओके, सो क्लीन एनर्जी मीन्स जो एनर्जी जब प्रोड्यूस करते हैं तब कोई भी हजार्डस गैसेस उस एनर्जी से नहीं निकलते हैं, इसको बोला जाता है क्लीन एनर्जी। ओके, सो क्लीन एनर्जी के सोर्सेस क्या है अपने को पता है, जैसे सोलर सिस्टम एंड हाइड्रो पावर सिस्टम्स एंड विंड एनर्जी, ये सब क्लीन एनर्जी के सोर्सेस है। तो इसके पहले सेशंस में ये आपका होपफुली कवर हुआ है कि क्लीन एनर्जी होती क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, उसके यूजेस क्या है। तो इसके अलावा आज अपन एक दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लाइक क्लीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द क्लीन एनर्जी। ओके, सो सोलर एनर्जी दिन में तो यूज कर लेंगे, दिक्कत कब आती है? रात के टाइम में। सो क्लीन एनर्जी का अगर अपने को 100% यूज करना है तो उसको 24 आवर्स अवेलेबल करना पड़ेगा अपने लिए। बट एज विंड एनर्जी भी 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हो सकती है, एंड सोलर एनर्जी भी 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रहती है। ओके, सो ये एक इशू है कि नाइट के टाइम पे उसको कैसे यूज किया जाए। तो उसके लिए उस एनर्जी को डे टाइम पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन यूज इट इन द नाइट। ओके, सो एनर्जी को स्टोर करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली दो बैटरीज का यूज होता है। फर्स्ट इज लिथियम आयन बैटरी एंड लीड एसिड बैटरी। जैसे आपको पता है बेसिक लिथियम आयन बैटरी एंड लीड एसिड बैटरी होती क्या है, बट आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे जो भी मेरे इनोवेशंस है, मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है, वो सारे इसी चीज पे डिपेंडेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आगे बढ़ सके। ओके, सो लिथियम आयन बैटरी का ये एक मेटल होता है लिथियम, उससे बनी रहती है, एंड लीड एसिड बैटरी जैसे नाम भी मेंशन किया है ये लीड से बनी रहती है। ओके, एंड लिथियम आयन बैटरी का एडवांटेज ये है कि ये बैटरी मैक्सिमम 3 आवर्स में अपन चार्ज कर सकते हैं। ओके, एंड लीड एसिड बैटरी टेक्स 10 आवर्स टू चार्ज। सो एंड लीड एसिड बैटरी जब चार्ज करते हैं तब बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, हजार्डस गैसेस का एमिशन होता है इसमें से।
बट लिथियम बैटरी के जब लिथियम बैटरी की बात होती है तब ऐसे कुछ नहीं होता है. मीन्स लिथियम बैटरी इज अ वेरी इको फ्रेंडली बैटरी. सो अभी ये लिथियम बैटरी जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है लीड एसिड बैटरी से. तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसका एक्सपेंस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या फिर कहाँ से खरीद सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होगी. सो एंड वन थिंग दैट लिथियम बैटरी ये 91% इफिशिएंट है. इसका मतलब ये है कि जब अपन लिथियम बैटरी को चार्ज करते हैं 100% तक, ओके, सो बैटरी का अपन 100% यूज नहीं कर सकते. अगर किसी बैटरी को अपन 100% यूज कर लिए तो वो बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है. डीप डिस्चार्ज एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का फ्लो होता है वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है. एक बार बैटरी डीप डिस्चार्ज में जाने के बाद वो फिर से चार्ज भी नहीं होती. तो ये वेरी हार्मफुल सिचुएशन रहती है. इसीलिए लिथियम बैटरी को अपन मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 91% तक, अप्रोक्सीमेटली 91%, इट इज नॉट एग्जैक्टली 91%, ओके. बट लीड एसिड बैटरी जो है उसका सिर्फ 78% ही अपन यूज कर सकते हैं. मीन्स अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की हो एंड 12 एम्पियर पर आवर की हो, अभी आप सब इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हैं तो आपको वोल्टेज एंड एम्पियर का बेसिक नॉलेज होगा. इतना डिटेल में नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक नॉलेज तो आपको होगा कि हाँ वोल्टेज मतलब ये होता है एंड एम्पियर मतलब ये होता है. उतना डीपली डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है. सो जो भी लीड एसिड बैटरी रहती है उसका सिर्फ 78% यूज कर सकते हैं. अगर उससे ज्यादा अपन ने यूज कर लिया तो वो बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी, ओके. तो एक पूछना था मुझे, जो लिथियम आयन बैटरी है वो तो मोबाइल फोन में भी रहती है ना, तो अपन 100% यूज कर सकते हैं ना उसे? एक्चुअली वो 100% जो अपन बोलते हैं ना वो परसेंटेज दिखाया जाता है, बट जब मोबाइल कंप्लीटली स्विच ऑफ भी हो जाता है फिर भी उसमें 8 to 9% बैटरी रहती है स्टोर. अच्छा. एक्चुअली होता क्या है, जो वहाँ पे डिस्प्ले होता है ना मोबाइल पे 0 to 100%, वो स्टार्ट होता है 9% से. मतलब अगर बैटरी 9% पे जाती है तो अपने को वो 1% उठाएगा. ऐसे वो 9 to 100% के बीच में लाई करती है. 9% से अगर ज्यादा यूज कर लिया अपने, मतलब मिनिमम लिथियम आयन बैटरी में 9% चार्ज में रहना चाहिए, नहीं तो वो डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी और खराब हो जाएगी. जो मोबाइल में दिखाता है वो सिर्फ एक इंडिकेटर रहता है जो 9% के बाद कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है. तो क्लियर हो गया आपको? ओके. यस. ओके, थैंक यू. सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी यहाँ पे डिस्कस किए थे कि लिथियम बैटरी एंड लीड एसिड बैटरी दोनों का कंपैरिजन हमने देख लिया है. एंड अभी जो लीड एसिड बैटरी रहती है वो एक कॉम्पैक्ट, मीन्स अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लाइक अपने जो इन्वर्टर के बैटरीज रहते हैं वो 150 AH के रहते हैं, 150 एम्पियर पर आवर, 12 वोल्ट 150 एम्पियर पर आवर के बैटरीज रहते हैं. बहुत बड़े बड़े बैटरी रहते हैं लीड एसिड बैटरीज, ओके. बट वही बात अगर लिथियम बैटरी की हो, लिथियम बैटरी कितनी भी बड़ी बनाई हो, मीन्स कितनी भी बड़ी बनानी हो, उसमें ये छोटे सेल्स यूज होता है. ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, ये सेल्स का बंच बना के एक बड़ा बैटरी पैक बनाया जाता है, ओके. वो आगे डिस्कस करेंगे. सो लीड एसिड बैटरी को 2 टर्मिनल्स रहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, ओके. बट वही अगर लिथियम बैटरी के टर्मिनल्स की देखा जाए तो एक सेल को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है. बट अगर उसका बंच बनाना, लाइक हंड्रेड्स ऑफ सेल्स एक पैक में हमने डाल दिए, तो दिक्कत ये हो जाती है कि इनको चार्ज कैसे किया जाए. लीड एसिड बैटरी में ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी में 2 ही टर्मिनल्स रहते हैं
यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे टर्मिनल्स को कंट्रोलर अटैच कर दो, ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। बट प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। अभी अगर आपको नहीं समझता है तो आप अभी पूछ सकते हो कि ये इसका पैक कैसे बनाना है, वो डिस्कस करेंगे। बट कुछ डाउट्स रहे तो अभी पूछ सकते हो, क्योंकि आज का जो सेशन है इसके बाद, इस सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अगर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होगी ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा अलग चल जाएगा, मीन्स थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा हो। सो कोई भी डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं वो आप बना सको। मीन्स डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े इसके बाद। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो मैंने लास्ट में मेरी मेल आईडी शेयर की है, उस पर आप मेल कर सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं। अभी ये जो लिथियम बैटरीज है, लिथियम बैटरीज में कभी भी एक कॉम्पैक्ट मीन्स एक बड़ी बैटरी नहीं होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स का एक बंच होता है, जिससे बड़ी से बड़ी बैटरियां बनाई जाती है। जैसे अभी टेस्ला आई है इंडिया में, ठीक है। आपको पता है टेस्ला जो कार है उसमें लगभग 7,000 ऐसे लिथियम सेल्स का यूज किया जाता है। सो इन्होंने लिथियम सेल का यूज क्यों किया? यहाँ पे वो लीड एसिड बैटरी यूज कर सकते थे जो कॉस्ट इफिशिएंट था उनके लिए, बट लीड एसिड बैटरी साइज में बहुत बड़ी हो जाती है कंपैरेटिव टू लिथियम आयन सेल्स। लीड एसिड बैटरी जो है वो साइज में बहुत बड़ी हो जाती है, उसका वेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लिथियम सेल्स बहुत हल्के रहते हैं एंड इसका एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कंपैरेटिव टू लीड एसिड बैटरी। तो अभी क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, हम ज्यादा फोकस लिथियम आयन एंड लीड एसिड पे कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है, बट नाइट में यूज करने के लिए एंड वेरियस पर्पसेस के लिए उसको स्टोर करके रखना है। क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना यही क्लीन एनर्जी नहीं है, मीन्स उसको स्टोर करके भी रखना, वो भी एक प्रोसेस है। वो भी ऐसे प्रोसेस को अडॉप्ट करना है जो एनवायरमेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल ना हो। इसीलिए यहाँ पे इस बैटरीज की बात की जाएगी। सो अभी जो टेस्ला मॉडल कार है, टेस्ला मॉडल है, इसमें लगभग 7,000 बैटरी हो जाती है लिथियम आयन की। सो ये बैटरी पैक बनाया कैसे जाता है? सो मैं इसका एक स्मॉल आपको बताऊंगा कि कैसे ये बैटरी पैक बनाया जाता है यार, एंड इतने सारे सेल्स को कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ मॉडल्स के नाम दिए हैं जिनका मैं रेगुलरली यूज करता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स में। तो फर्स्ट है ये TP4056, ये चार्जिंग मॉड्यूल है। ये सिंगल लिथियम आयन बैटरी, सिंगल लिथियम आयन सेल को चार्ज करने के लिए होता है। ओके, कौन सा है? TP4056। ये मॉड्यूल नाम नोट करके भी रख सकते हो, बहुत काम की चीज है ये। तो इस मॉड्यूल में ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ भी है, मीन्स एक बार अगर सेल फुल हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ कर देगा। लाइक आप अगर 10 आवर्स के लिए भी इसमें चार्जिंग करके रख देते हो सेल को, तो ये ऑटोमेटिकली फुल होने के बाद कट ऑफ कर देगा, पावर कट ऑफ कर देगा, ताकि सेल को कुछ हार्म ना हो पाए। ओके, सो यहाँ पे अगर एक सेल है तो ये ओके है। इस मॉड्यूल का यूज करके सिंगल सेल को चार्ज किया जाता है। बट अगर मुझे मल्टीपल सेल्स चार्ज करने हैं तो मुझे तो फिर ये जो एक मॉड्यूल है, अगर मुझे 100 सेल्स चार्ज करने हो तो मुझे ऐसे 100 मॉड्यूल्स लाने पड़ेंगे 100 सेल्स को चार्ज करने के लिए। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। ओके, सो उसके लिए अपने पास ऑप्शन है BMS, जिसको बोला जाता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये BMS यूज क्यों करते हैं? अगर इसी मॉड्यूल को पैरेलल में लगा दिया जाए नंबर ऑफ सेल्स को, लाइक 4 सेल्स है, 4 सेल्स को इसी मॉड्यूल्स के साथ पैरेलल में लगा दिया जाए तो क्या होगा? आपको पता होगा पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन, होपफुली।
पैरेलल कनेक्शन मतलब ये रहता है कि जो पॉजिटिव सेल पॉजिटिव है उसके सारे पॉजिटिव कॉमन कर दिया जाए एंड सारे नेगेटिव कॉमन कर दिया जाए, तो इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सो ऐसे करके इसको डायरेक्टली चार्ज किया तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। बट अगर ऐसे चार्ज कर सकते हैं तो ये बीएमएस की क्या जरूरत है? सो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी ये जो मॉड्यूल है इसको मैंने बोला है कि सिंगल एक सेल को ही चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो क्या हो सकता है कि समझ लो ये दो सेल है, ये सेल ऑलरेडी 80% इसमें चार्ज है, ठीक है, बट इस सेल में 20% ही चार्ज है। ठीक है, इन दोनों को मैंने पैरेलल में कर दिया। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत अच्छी चीज में बता रहा हूँ। ठीक है, सो इन दोनों को मैंने पैरेलल में अटैच कर दिया। ठीक है, पैरेलल में अटैच करने के बाद मैंने ये मॉड्यूल्स को अटैच कर दिया और डायरेक्टली चार्ज को लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये 100% होने के बाद ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा। इसको कैसे समझेगा कि ये 100% चार्ज हुआ है? एक करंट, रिवर्स करंट करके कंसेप्ट है। वो रिवर्स करंट जब एक स्पेसिफिक उस सेल के जो हाईएस्ट करंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है, अगर वो वहां तक रीच हो गया तो ये समझ जाता है कि बैटरी फुल हो गई और ये पावर कट ऑफ कर देता है। ठीक है, तो अभी इसमें 80% चार्ज था और इसमें 20% चार्ज है। ठीक है, इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जैसे ये सेल 100% चार्ज हो जाता है तो ये सेल 40% चार्ज होगा, 20% इंक्रीज होगा, पैरेलल में हो रहा है सेम होगा। ठीक है, अभी ये जैसे 100% इंक्रीज रीच हो जाता है तो ये सेल रिटर्न कर देगा करंट को, मतलब जो रिवर्स करंट है वो इसको इंडिकेट कर देगा कि चार्जिंग फुल हो गई है एंड आप अभी पावर कट ऑफ कर सकते हैं, तो ये पावर कट ऑफ कर देगा। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये सेल तो 100% चार्ज हो गया है, अभी ये सेल जो है ये सिर्फ 40% ही चार्ज है। ठीक है, तो अभी ये दोनों बैलेंस है क्या? नहीं है, ये 100% है, ये 40% है। तो जैसे वो पावर कट ऑफ हो जाएगा उधर का, तो उसके बाद ये सेल से एनर्जी ऑटोमेटिकली इस सेल में ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, तो अभी इसमें 100% था, इसमें 40% हो गया, तो दोनों इसमें 50-50% हो जाएंगे। मतलब जब तक वो दोनों इसमें इक्वल नहीं होती तब तक वो करंट का ट्रांसमिशन चालू रहेगा। तो उसके बीच में जो वायर से कनेक्टेड होगा वहां पे करंट लॉसेस भी होंगे, तो दैट ये इतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। मींस 100% चार्ज करने के बाद भी वो 50% ही चार्ज है, क्योंकि अपने ये एक मॉड्यूल का यूज किया है, पैरेलल में यूज किया। ठीक है, तो इस चीज को हटाने के लिए, मींस ये डिसएडवांटेज इसका चेंज करने के लिए बीएमएस का इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, ये बीएमएस क्या होता है? बीएमएस मींस Hello, sir. Sir, your audio is lagging. ओके, अभी आ रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. It's good now. ओके, सो ये समझ में आ गया आपको कि होता क्या है ये अगर इसमें पैरेलल में लगा दिया जाए तो? सो अभी ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल इतना एफिशिएंट नहीं है मल्टीपल सेल्स को चार्ज करने के लिए, क्योंकि वहां पे करंट लॉसेस इस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको और इफिशिएंट बनाने के लिए बीएमएस का इन्वेंशन हुआ। अभी बीएमएस में क्या, बीएमएस मतलब क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बीएमएस में क्या होता है? मल्टीपल पोर्ट्स दिए रहते हैं। ठीक है, ये एक बीएमएस है, इसको 3S बीएमएस कहा जाता है। अब ये 3S क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक बार में हम 3 सेल चार्ज कर सकते हैं, 3 बैटरीज इसमें चार्ज हो सकती है, इसीलिए इसको 3S बीएमएस बोला जाता है। ये 4S भी अवेलेबल है, 5S भी अवेलेबल है, 100S भी अवेलेबल है, 400S भी अवेलेबल है एंड 444S भी बीएमएस अवेलेबल है।
तो एडवांटेज ये हो गया अभी बीएमएस होने के, बीएमएस का इन्वेंशन होने के बाद, कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो अपन एक साथ चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स रहते हैं, मीन्स एक ग्राउंड रहता है, एक कॉमन रहता है, एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव रहता है, मीन्स वहाँ पे मेंशन किया रहता है कि यहाँ पे आप फर्स्ट बैटरी लगाइए, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, ठीक है। तो जैसे इस डायग्राम में दिया है, यहाँ पे फर्स्ट बैटरी लगाते हैं, जो बड़ी डंडी है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, एंड एक छोटी जो है इसका मतलब निगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव है एंड इसका निगेटिव यहाँ पे एक से इतना डिटेल में ले जाते हुए सीधा यहाँ पे फर्स्ट बैटरी लगाई जाती है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड बैटरी। सिर्फ 3 ही बैटरीज क्यों? क्योंकि ये 3S BMS है। अगर ये 4S रहता तो यहाँ पे 4 बैटरीज चार्ज कर सकते हैं। एंड एक डाउट है कि अगर 3S BMS है तो क्या इसमें अपन 2 बैटरीज चार्ज कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बैटरी सिर्फ चार्ज कर सकते हैं, बट ये 3S BMS का कॉस्ट 2S BMS से ज्यादा होगा। तो अगर आपको 2 बैटरी चार्ज करनी है तो आप 2S BMS भी ले सकते हो, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी करंट लॉस की, वो यहाँ पे खत्म हो गई। कैसे? तो जब इसको चार्ज किया जाता है तब इसको 12 वोल्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो 12 वोल्ट के BMS 3 जगह पे बांट देता है, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। और ये BMS ये तीनों बैटरीज को बैलेंस चार्ज करता है। ये बैलेंस चार्ज मतलब क्या है? तीनों बैटरीज को वो 100% फुल कर देगा। जब तीनों बैटरीज 100% फुल रहेगी, तीनों बैटरीज का जो करंट रहेगा वो बैलेंस रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये करंट इधर से इधर और इधर से इधर फ्लो नहीं होगा। अब ये जब पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं तब ये करंट का फ्लो कैसे होता है? मान लो कि एक ऐसे बकेट है, इस बकेट में वाटर फिल किया हुआ, ठीक है, एंड इधर सेकेंड बकेट है, बीच में एक पाइप लगाई गई है, ठीक है। इधर मैंने पानी भर दिया है बकेट के फुल होने तक, और इधर का बकेट एम्प्टी है। तो क्या होगा? ये पाइप के जरिए इस बकेट में से पानी इस बकेट में आएगा। कब तक आएगा? जब तक ये दोनों बकेट का पानी सेम ना हो जाए। उसी तरह करंट का सेम फ्लो है। जब तक ये 2 सेल पैरेलल में है और जब तक इन दोनों में सेम चार्ज नहीं होगा तब तक चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहेगा। इसी तरीके से अपना मोबाइल भी चार्ज होता है। तो अभी यहाँ पे देख लिया अपने कि BMS क्या होता है, एंड BMS में नंबर ऑफ सेल्स एट ए टाइम चार्ज कर सकते हैं। तो ये टेस्ला के पास 440S BMS है। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 7000 सेल्स है, ठीक है। तो ये इनके पास 440S BMS है। तो ये 440 सेल्स को एट अ टाइम इक्वली चार्ज कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो गाड़ी है इसके इतने सारे सेल्स हैं, ठीक है, 7000 सेल्स। अगर पैरेलल में इसको इन सबको कांस्टेंट करंट दिया जाए तो ये गाड़ी लगभग 3 से 4 घंटे में चार्ज हो सकती है, 3 से 4 घंटे में। और इसको फास्ट किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। अभी टेस्ला जिस टेक्नोलॉजी वर्क कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी पे सिर्फ 50 to 60 मिनट्स में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। सो लिथियम आयन सेल्स का यही एक एडवांटेज है कि ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, एंड इसका अबाउट 90% अपन यूज भी कर सकते हैं। मतलब ये लीड एसिड से ज्यादा इफिशिएंट भी है, एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर चार्जिंग वो भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो वो अभी आपको समझ में आ गया है कि BMS सेल को चार्ज कैसे किया जाए, मीन्स एक सेल रहा तो कैसे चार्ज करना है, एंड अगर 2 सेल रहे तो कैसे चार्ज करना है, ठीक है। अगर नहीं समझता है तो आप मुझे मेल ड्रॉप करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बात करते हैं, अभी इस टॉपिक से नए मुद्दे पे आते हैं कि आपको अगर एक नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है
तो उसके लिए कैसे सोचना चाहिए एंड कौन सी प्रोसीजर है जो फॉलो करनी चाहिए. इट्स नॉट स्टैंडर्ड प्रोसीजर. जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो आपको भी ये हेल्प कर दे. ठीक है, पहली बात ये है. एक चीज पूछना चाहता हूँ हाँ हाँ yes. सर. मैंने मतलब लैपटॉप की बैटरी खोली थी, Okay. दो लैपटॉप नए मतलब लैपटॉप की, एक पुराने लैपटॉप की. तो पुराने लैपटॉप की बैटरी में मैंने देखा 3.7 वोल्ट की बैटरी को दो दो के पेयर में करके कनेक्ट किया गया है. 6 बैटरी दो दो के पेयर में पैरेलल कनेक्शन किया गया है. ठीक है, तो उससे 11.1 वोल्ट जनरेट हो रहा था. ठीक, और नए वाले लैपटॉप में सीरीज में तीनों बैटरी को 3.7 वोल्ट की ही कनेक्ट करके 11.1 वोल्ट जनरेट कर रहे थे. तो फिर जब दोनों का वोल्टेज सेम है तो एक को पैरेलल में और एक को सीरीज में, ऐसा क्यों? आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन. देखिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहले जो आपने बैटरी बोली थी उसमें दो सेल्स देखिए सीरीज में थे. दो सेल्स के पैक. 3.7 वोल्ट के दो सेल्स थे. ठीक है, उनका 3 पेयर था, तो ऐसे 6 बैटरीज थे. यस. ठीक है, ये पुराने वाली की बात कर रहा हूँ. 3.7 का एक पेयर बनाया और उसी पेयर को 3 बार रिपीट किया, तो इसमें 6 सेल्स को लगाया था उसमें पुराने वाले में, और उससे जनरेट कर रहा था 11.1 वोल्ट टोटल. ठीक, और जो नया वाला है उसमें क्या करता है, वो सीरीज में 3.7 वोल्ट की बैटरी वो भी यूज कर रहा है, लेकिन उसमें सीरीज में 3 कनेक्ट किया है और उससे 11.1 वोल्ट जनरेट कर रहा है. तो जनरेट आफ्टर फाइनल प्रोडक्ट में 11.1 वोल्ट दोनों ही जनरेट कर रहे हैं. तो एक में क्या किया है, 6 बैटरी लगाया है पैरेलल में, और एक में क्या कर रहा है, 3 बैटरी को लगा के 11.1 वोल्ट जनरेट कर रहा है नए वाले में. तो ये डिफरेंस क्यों? ओके ओके ओके. सो ये कैसे होता है, बहुत सारे जो लैपटॉप्स है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं. ठीक है, अभी क्या होता है, एक जो बैटरी रहती है लिथियम सेल वो रहता है 3.7 वोल्ट. ठीक है, अगर उसको फुल चार्ज किया जाए ना तो वो हो जाती है 4 वोल्ट. ठीक है, बट उसको आइडियली 3.7 वोल्ट ही बोला जाता है. ठीक है, अभी जो आप पहले बैटरी का जिक्र कर रहे हो जिसमें दो सेल्स सीरीज में थे, सॉरी दो सेल्स पैरेलल में थे, ऐसे पैक था 3 इसका. ठीक है, तो 3.7 3.7 3.7 ये 11.1 वोल्ट हो गया, ये तो क्लियर है. बट जब दूसरे सेल की बात आती है, इसमें 3 सेल जो है वो पैरेलल में है, एंड उसका जो दूसरा पैक है और 3 सेल का वो उसके साथ सीरीज में है. ठीक है, तो यहाँ पे 11.1 वोल्ट जनरेट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो फिर भी वो 11.1 वोल्ट जनरेट हो रहा है. वो कैसे हो रहा है, वहां पे वोल्टेज बूस्टर का यूज किया जाता है. अब ये वोल्टेज बूस्टर क्या होता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में. अभी वो 3.7 एंड 3.7 हो रहा है, तो वो 7.4 वोल्ट होना चाहिए. बट यहाँ पे वो वोल्टेज बूस्टर मतलब क्या होता है, जो करंट को लेके, मीन्स ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा है ना. हाँ सर. तो ट्रांजिस्टर का काम बहुत ज्यादा होता है वोल्टेज बूस्टर में. वोल्टेज बूस्टर क्या करता है, वो 5 वोल्ट को भी 30 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ. स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर. वो वोल्टेज बूस्टर सर्किट है. तो ये सर्किट क्या करता है, डीसी टू डीसी स्टेप अप बूस्ट कन्वर्टर इसको बोला जाता है. ये 4 वोल्ट से लेकर, मीन्स इनपुट अगर 3 वोल्ट भी दिया ना तो 4 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक भी ये बूस्ट कर सकता है. अब इसका एडवांटेज क्या है, ये कम करंट का यूज करके भी अपने लैपटॉप को कंप्लीट पावर सप्लाई दे सकता है. अगर कम करंट दे रहे हो आप तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पावर बैकअप है वो बढ़ जाएगा. इसीलिए अभी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. मीन्स वोल्टेज बूस्टर मॉड्यूल का यूज किया जा रहा है, जिसमें अगर दो सेल्स
पैरेलल में है, ठीक है। 3.7 वोल्ट के दो सेल्स पैरेलल में, उसमें से अगर 2 एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है तो दो सेल पैरेलल में करने के बाद उसमें से 4 एम्पियर हो जाएगा। पैरेलल में करंट ऐड होता है, ठीक है। पैरेलल में जब रहता है तब करंट ऐड होता है, और सीरीज में जब रहता है तब वोल्टेज ऐड होता है। थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, बट ये सिर्फ उनके लिए जिनको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है कि करंट जो है वो ऐड होता है, तो 3.7 वोल्ट 2 एम्पियर एंड 3.7 वोल्ट 2 एम्पियर, ऐसे दो बैटरी अगर पैरेलल में लगा दी जाए तो वो हो रहे 4 एम्पियर, ठीक है। अब ये 4 एम्पियर को डायरेक्टली 11.1 वोल्ट हो रहा है, तीन बैटरी पैक का, इस 11.1 वोल्ट 4 एम्पियर का पैक हो रहा है। बट अगर यहाँ पे मैं 3 सेल को अगर पैरेलल में लगा दूं, कितना एम्पियर हो रहा है? 2 एम्पियर 2 एम्पियर 6 एम्पियर हो रहा है, 2 हर एक सेल का। 3 सेल पैरेलल में है तो यहाँ पे 6 एम्पियर मुझे मिल रहा है। 7.4 वोल्ट 6 एम्पियर, अगर मैं वोल्टेज को पुश करता हूँ तो मेरे पास 6 एम्पियर है, जिससे लैपटॉप का पावर बैकअप बढ़ जाएगा, समझ रहा है। इसीलिए हर एक कंपनी अपने खुद के इनोवेशन के थ्रू बैटरी डिजाइन करती है। समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है सर। ओके, सो अभी डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी आपको एक आइडिया हो या फिर कोई नीड हो, उससे फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। पहली बात तो ये है कि आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं एक ड्रोन बना दूंगा, मैं ऐसा कुछ बना दूंगा जिससे सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, एंड कॉलेज के गेट के एंट्रेंस पे पैर रख दूंगा तो मेरे को सीधा डायरेक्ट क्लास के सामने मैं चला जाऊंगा। तो ये हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। बट जब भी आपको स्टार्ट करना है किसी चीज को, अभी तक कैसे हो रहा था, थियरी पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स, बैटरीज, ये सब कुछ पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये समझना भी बहुत मुश्किल है। मैंने थियरी में पढ़ के 10 पॉइंटर ला लिए, बट जब प्रैक्टिकल की बात आती है तब उसका एक्चुअल वर्किंग क्या है, थियरी में एंड प्रैक्टिकल में कंप्लीट यहाँ पे डिफरेंस है। सो दैट आपको जब स्टार्ट करना है तब एकदम छोटे से सर्किट या फिर बहुत छोटे से छोटे चीजों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मेरी बात बताता हूँ। रिसेंट मैं ग्रेजुएट हुआ था, ग्रेजुएशन के पहले लॉकडाउन हो गया था, तो मैं वाईसीसी से मेरे गांव आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जाम्स हो रही थी, एग्जाम्स के लिए पढ़ना तो नहीं था, ऑनलाइन एग्जाम थी, पढ़ना भी था तो बहुत कम पढ़ना था, तो इतना प्रेशर नहीं था माइंड पे। तो तब ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आता है थोड़ा सा, तो उसका यूज कर लेंगे। पहले ही थोड़ा सा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक की चीजों पे। तो फर्स्ट चीज मैंने बनाई, मेरे खेत में कुछ फसल उगाई थी, वहां पे जो चिड़िया वगैरह रहती है उनका बहुत ज्यादा नुकसान कर रही थी फसल को चिड़िया। तो वहां पे मुझे ऐसे कुछ बनाना था जो चिड़ियों को भगा सके, ठीक है। अभी इसके लिए बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें सोची, बट एक चीज है जो चिड़ियों को भगा सकती है, वो आवाज करने वाली, ठीक है। अब खेत में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, और सोलर यूज कर भी लिया तो वो ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा, हर एक कोई सोलर प्लेट अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सोलर प्लेट की कॉस्टिंग ज्यादा है। छोटे से छोटा सोलर भी ले लिया तो इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, ज्यादा छोटा ले लिया तो ये भी दिक्कत थी। अभी कॉस्ट इफिशिएंट ये भी था। मुझे नीड तो समझ में आ गई, नीड क्या है कि ऐसा कुछ बनाना है जिससे चिड़िया भाग जाए खेत में से, ठीक है। अभी इस पे सोचना था कि कैसे बनाना है। मैं जब आपको बता रहा हूँ कि ये थॉट प्रोसेस है, यहाँ से अगर गुजरते हो तो सच में हो सकता है कि कोई नई चीज बना दे। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। इस पे सोचा, फिर एक चीज आई मन में कि एक बैटरी लगा देता है, उसको स्पीकर लगा देता है,
बट उस स्पीकर का आवाज इतना ज्यादा नहीं होता है जिससे चिड़िया भग जाए, इतना ज्यादा हो भी गया वो आवाज तो वो चिड़ियों के लिए इतना इरिटेटिंग नहीं रहता कि चिड़िया वहां से भाग जाए। तो वो फेल हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि खेत में हवा चलती रहती है बहुत ज्यादा, तो उस विंड एनर्जी का यूज करके कुछ बनाया जा सकता है क्या। तो मैंने एक पंखा बनाया जिससे जो एक प्लेट पे गिरता था और उससे साउंड क्रिएट होता था, ठीक है। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही हवा आती थी तो वो पंखा उस हवा के अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाता था। तो उस पे भी एक सॉल्यूशन निकालना था। तो पहले क्या हुआ, पहले जो मैंने सोचा था करने का स्पीकर्स का, ठीक है, तो छोटा प्रोडक्ट था, बहुत बड़ा नहीं था या फिर उसमें कुछ नया इन्वेंशन नहीं था, बस वो बनाया है, मैंने वहां पे जाके रखना था। बट अभी जो सेकेंड टाइम किया मैंने खुद से ट्राई किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट वो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे नहीं हो रहा था, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सोचा उस पे एंड मैंने फाइनली उस चीज को जिस डायरेक्शन से विंड एनर्जी आती है उस डायरेक्शन में उसको टर्न कर दिया। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, ये वो प्रोडक्ट है। अभी विजिबल स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. तो ये वो प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मैंने हार्डली 100 रुपीज कॉस्ट में बनाया है, हार्डली 100 रुपीज में ये बनाया है, ठीक है। और ये इतना इफेक्टिव है, इतना ज्यादा अच्छा काम करता है, ये मैंने लगभग अभी तक 1200 पीसेस मैंने बेचे, 1200 नियर अबाउट, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है बट अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि ये 1200 में बेचे, ये मैंने 500 में बेचे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये नीड तो मेरी थी, मतलब मेरे खेत में मुझे लगाना था, तो उसके लिए मैंने मेरे खेत में लगाया। बट जो लोग देख रहे थे वो पूछ रहे थे कि हाँ ये कितने में मिलता है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया था 500। एंड आप अभी सोच सकते हो कि एक छोटे सा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा करके मैंने बनाया, एकदम छोटू सा जुगाड़ है। आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो फिर आपको आवाज आ जाए इसका। आवाज आ रही है? नहीं सर। No, sir. वीडियो में से कुछ आवाज नहीं आ रही है। The video is playing, but audio is not there. ओके, आई विल ट्राई अगेन। गूगल मीट से सेटिंग चेंज करना पड़ेगा ऑडियो के लिए। क्या? गूगल मीट से सेटिंग चेंज करना पड़ेगा ऑडियो के लिए। ओके, क्या आप बता सकते हो कैसे सेटिंग करना पड़ेगा? या क्रोम ओपन नहीं हो रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस, हाँ, अभी कहाँ से मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा ऑडियो का सेटिंग्स? वो 3 डॉट्स है ना नीचे 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 नीचे, हाँ, सेटिंग्स, ओके, स्पीकर, स्टीरियो, वेयर इज इट, ओके। सो लेट्स ट्राई। अभी आ रही है आवाज? No, sir. नो, तो अगेन सेटिंग्स चेंज करके देखते हैं।
ओके, मैं आपको ये वीडियो मेल कर दूंगा सबको, अगर साउंड नहीं आता है तो एक बार लास्ट ट्राई करते हैं श्योर सर। प्लीज। अभी आ रहा है? No. ओके, सो मैं आपको सबको ये वीडियो शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, इसमें सिंपली एक जो अपना प्लेट रहता है वो प्लेट है यहाँ पे, और ये सनमाइका है एंड ये पाइप्स है एंड यहाँ पे एक फैन लगा है। जो भी खेत में हवा चलती है, ठीक है, आई एम ऑडिबल? Yes. यस सर। ओके, सो जो भी यहाँ पे हवा चलती है खेत में, तो उस विंड एनर्जी से ये फैन बहुत जोर से घूमता है। ये जैसे घूमता है बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज बहुत सिंपल है एंड तब ये ऐसे ही रैंडमली आ गया था दिमाग में और ये बना दिया। और अभी भी इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे ही खेत में कुछ डालते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था, मैंने बनाया। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि इसको मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, बट जब बनाया लोगों ने देखा तो मैंने भी डिस्कस किया कि और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये था, इसमें बियरिंग्स लगाई हुई है इधर उधर घूमने के लिए। जैसे ये इधर उधर घूमता है, जैसे विंड आती है ना, विंड के डायरेक्शन में ये घूमता है, तो इसके अंदर बियरिंग्स लगाई गई है। जैसे पानी इसमें गिरता है तो ये बियरिंग्स है ना जाम हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज था। तो मैंने सिंपली एक पानी का बॉटल का यूज करके उसको कवर कर दिया ताकि वो बैरिंग में पानी ना जाए। तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल चीज बनाई थी, बट जो आउटपुट इसका जो फीडबैक मिला लोगों से वो बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था। तो ये मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर कर दिया कि हाँ, कुछ तो भी बना सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं और बेच सकते हैं। तब से मैंने इस चीज पे वर्क करना स्टार्ट किया एंड उसपे वर्क किया एंड फाइनली वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया था, ठीक है। अभी वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसके बहुत सारे सेलिंग भी कर दिए, बट उसके बाद क्या था, अभी एक तो बना दिया, उसके बाद और क्या करना है। तो वहां पे मैंने ऐसी कुछ चीजों पे रिसर्च करना चालू किया। लाइक जैसे मैं हॉस्टल में रहता था नागपुर में, जब मैं वाईसीसी में था तब मैं एक हॉस्टल में रहता था। तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत हमको होती थी कपड़े धोने में। सब कुछ हो जाता था, मेस था, खाना बनाने का टेंशन नहीं था, बर्तन धोने के भी टेंशन नहीं था, बट दिक्कत आती थी कपड़े धोने में। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर वो सस्ते में हो, लाइक मुझे तब कोई बोल दे कि ये लो, मैं आपको 800 रुपए में एक वॉशिंग मशीन दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो मैं इजीली खरीद लेता उस चीज को। तो मैंने एक टीम बनाई मेरे गांव में ही। मेरी टीम ऐसी है जो मतलब बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है। मेरे टीम में कोई भी एजुकेटेड नहीं है मुझे छोड़ के, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली ब्लैंक है। उनको जैसे मैं बताता हूँ उतना ही उनको समझता है, वैसे ही वो काम करते हैं। तो हमने ऐसे डिस्कस किया कि ऐसे हो सकता है। तो उनका भी थोड़ा सा, अभी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लगभग अभी 1 साल कंप्लीट हो रहा है हमारे कंपनी को। सिर्फ 1 ही साल हो रहा है, बट हमारे पास अभी मोर देन 80 प्रोडक्ट्स है जो खुद ने बनाए हुए हैं। मैं आपको उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा, मतलब सारे प्रोडक्ट्स इसीलिए नहीं दिखा सकते कि कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी पेटेंट होना है, तो वो नहीं दिखा सकता मैं आपको, एंड कुछ रजिस्टर्ड होने हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एंड बताऊंगा कि एक छोटी सी चीज है जहां से इंस्पिरेशन मिली थी, वहां से निकल के, वो तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड नहीं था। जो भी मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं हो रहा है, बट वो सिंपल एक जुगाड़ था। तो मैंने सोचा कि ऐसी जुगाड़ करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इसमें अप्लाई किया जाए। सो इसके बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। वो कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने रखूंगा मैं।
तो ये फर्स्ट, ये तो अभी बहुत प्रोडक्ट्स बनाने के बाद ये मैंने बनाया था। ये एक टॉर्च है, बट इट इज नॉट अ नॉर्मल टॉर्च। जैसे अपने नॉर्मल टॉर्च होते हैं वैसा ये टॉर्च नहीं है। इसमें बहुत सारी नहीं बट बेसिक टेक्नोलॉजीज का यूज किया है। आपको स्क्रीन दिख रही ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके। सो इस टॉर्च में मैंने क्या किया, जो नॉर्मल टॉर्च रहता है मार्केट में उसमें लीड एसिड बैटरी होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लिथियम आयन के कितने फायदे हैं। सो लीड एसिड बैटरी इसमें अगर है तो ये टॉर्च का जो वेट होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैंने लीड एसिड की जगह इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज किया एंड उसमें थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने ऐसे सर्किट एक डेवलप किया है जिससे करंट बहुत कम कंज्यूम हो। ठीक है, मींस जो भी करंट नॉर्मल जो टॉर्च को लगता है उससे थोड़ा सा कम दे। एंड इसमें वोल्टेज बूस्टर का ऐड किया है जिससे वोल्टेज बूस्ट हो एंड करंट कम कंज्यूम करे। जिससे क्या होता है, जो भी टॉर्च की रोशनी है वो मेंटेन रहती है एंड करंट कंज्यूम कम होने की वजह से इसका जो बैकअप है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो बैटरी है इसका बैकअप है 24 आवर्स। यहाँ पे मैंने 12 to 20 आवर्स इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सेफ है। ये 4 से 5 साल तक तो भी 12 आवर्स से 20 आवर्स तक चल सकता है। मतलब एक बार अगर टॉर्च को चालू कर दिया और दूसरे दिन सेम इसी टाइम पे देखते हो, मैंने इस टॉर्च को बेचते टाइम क्लेम किया था कि अगर ये टॉर्च आप अभी चालू करते हो और सेकेंड डे जब आप उसी टाइम पे देखते हो उस टॉर्च को, अगर थोड़ा सा भी रोशनी घट गई, थोड़ी सी भी रोशनी घट गई तो टॉर्च भी आपके होंगे और जितने भी पैसे आपने इसको पे किए वो सारे पैसे भी आपके होंगे। तो इसमें कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इधर उधर से और छोटी छोटी चीज में ऐड कर दी जिसके वजह से लोगों को लगे कि हाँ बहुत सारे फंक्शंस इसमें है। लाइक इसमें मैंने पावर बैंक दिया है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का। रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं पहले जब भी ये प्रोडक्ट बनाता हूँ अभी, तब मैं पहले पूछता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पावर बैंक चाहिए या नहीं चाहिए, आपको स्पीकर्स चाहिए, इसमें आपको इसमें डिस्प्ले चाहिए। मैं एलईडी डिस्प्ले भी फिट करके देता हूँ इसमें टॉर्च में। अभी ये बहुत नया होगा सुनने के लिए, बट हाँ बहुत चीप कॉस्ट में है। ये टॉर्च सिर्फ 850 रुपीज में मैं बेचता हूँ, सिर्फ 850 रुपीज में। अगर आप मार्केट में एक 6000 mAh का पावर बैंक लेने चाहोगे तो वो 600 का होगा। ये टॉर्च ऑलरेडी मार्केट में 1200 रुपीज में बेचे जा रहे हैं विदाउट पावर बैंक एंड विदाउट स्पीकर्स। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, 850 रुपीज, वो भी जो टॉर्च रहते हैं 1200 रुपीज में, उसमें लीड एसिड बैटरी यूज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने 6 मंथ्स गारंटी इसीलिए दी है, इसको 4 to 5 years जीरो मेंटेनेंस है, मतलब 5 साल तक तो ये आराम से चल जाएगा। क्योंकि लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू लीड एसिड बैटरी। ठीक है, अब ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसका लाइफ साइकिल, मैंने एक वर्ड यूज किया है। अब ये लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल मतलब बैटरी चार्ज होने से, कंप्लीट डिस्चार्ज से चार्ज होके फिर से कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाए, इसको एक लाइफ साइकिल बोला जाता है उस टॉर्च का। तो अभी इस टॉर्च को कितना भी यूज कर लो, इसका एक लाइफ साइकिल मिनिमम 1 डे का होगा। आप टॉर्च अभी सिटीज में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट रूरल एरिया में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैंने ये टॉर्च डिजाइन किया था, और ये टॉर्च जब डिजाइन किया था इसके साथ मैं एक छोटा सा फैन था वो गिफ्ट कर रहा था, मतलब फ्री दे रहा था। 850 रुपीज में आपको फैन भी मिल रहा है, टॉर्च भी मिल रहा है, पावर बैंक भी मिल रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर्स भी मिल रहा है एंड लिथियम आयन बैटरी मिल रही है। तो ये 850 रुपीज में इसीलिए दे रहा था मैं क्योंकि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। मैंने जब ये लॉन्च किया था तब थोड़ा सा टाइम लगा था कि लोगों तक पहुंचने में, बट जैसे ही लोगों को समझा कि हाँ ऐसा कुछ तो भी टॉर्च है जिसमें इतने सारे फीचर्स है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है लिथियम आयन बैटरी क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया बट समझ में नहीं आता है, तो मैंने कुछ वीडियोस बना के उसकी पब्लिसिटी की है। एंड मैंने इसमें खुद गारंटी ली है कि अगर आप ये टॉर्च सुबह चालू करते हो एंड दूसरे दिन सुबह देखते हो, थोड़ा सा भी उसमें लाइट में कुछ गिरावट आती है, उसके इंटेंसिटी में, उसमें फोकस में, तो आपके पूरे पैसे मैं रिटर्न कर दूंगा। ये गारंटीड 100%।
तो इसके वजह से लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। अभी इसमें बहुत कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है एंड एक सर्किट है, उस सर्किट पे हमारा रजिस्ट्रेशन है, मीन्स वो सर्किट अभी दूसरे यूज नहीं कर सकते, वो रजिस्टर्ड है। तो वो जो सर्किट है वो ऐसे रिसर्च करके, नॉर्मल रिसर्च करके ही हमने बनाया है। तो ये जो चीज है ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है हमारा अभी तक। इसके बहुत सारी सेलिंग हुई है एंड और भी होगी, जैसे जैसे ये इसको लोगों तक पहुंचेगा ये, उसकी सेलिंग बढ़ती जाएगी और ज्यादा। ठीक है, तो अभी ये चीज को इनोवेशन बोल सकते हैं क्या? ये एक बात है, मतलब सोचने वाली बात है, ये चीज इनोवेशन है क्या? सच में नहीं है। अगर आपको कुछ नई चीज बनाना हो तो नेसेसरी नहीं है कि वो कंप्लीट नई चीज हो। जो मार्केट में है उसको आप मॉडिफाई करके भी बेच सकते हो। मीन्स मैं एक आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सिटीज में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट रूरल एरिया में पैसे की बहुत तंगी है। मेरे गांव में लगभग हर घर से एक बंदा मेरे साथ काम करता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही नहीं है, मैं सीजन वाइज लोगों को जॉब्स देता हूँ। अभी जैसे समर आया है तो समर में कूलर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, तो उसके रिलेटेड वर्कशॉप्स लेता हूँ गांव में, मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ एंड हर एक गांव में जाकर वो मीन्स गांव में जाकर वो काम करते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। तो ये जो टॉर्च है इसमें कुछ भी नया इन्वेंटेड नहीं है, सिर्फ एक सर्किट है, बहुत सिंपल सर्किट है। अभी मैं रिवील नहीं कर सकता वो सर्किट क्या है, उसमें कैसे है, बट बहुत सिंपल सर्किट है। अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज रखते हो, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स, पावर बैंक मॉड्यूल, तो अगर इतना भी नॉलेज आपके पास हो तो आप ये इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो यही चीज है जो रूरल एरिया में जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या है रूरल एरिया में? एक लाइट होना चाहिए घर पे एंड एक फैन होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉर्च जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। इस पे अभी नया इसमें ऐड नहीं किया है। ये जो पोस्टर मैंने बनाया था ये बहुत पुराना था, जब स्टार्टिंग किया था तब का, बट जब अब एडवांस हो गया तो हम इस पे एलईडी स्क्रीन भी लगा के दे रहे हैं। बहुत सस्ते में हो रहा है, एलईडी स्क्रीन लगा के 1200 कॉस्ट जाता है इसका, बट ये जब खेत में जाते हैं तब एंजॉयमेंट के लिए अच्छी चीज है। इसमें मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हो, ब्लूटूथ स्पीकर है इसमें एंड गाने भी सुन सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो एंड अच्छे क्वालिटी में मिलेगा। 480p में वीडियोस मिलते हैं इसमें, मींस 480p के वीडियोस देख सकते हो 480p में, जो बहुत अच्छी नहीं बट एवरेज क्वालिटी है। सो एक टॉर्च में इतना कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है इसके बारे में, ऐसा टॉर्च अभी तक कहीं पे भी नहीं बना है। जो भी बनाए है उसमें लीड एसिड बैटरी यूज की है और लिथियम आयन बैटरी भी कुछ टॉर्च में यूज की है, बट उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं है। एंड लिथियम आयन बैटरी भी उन्होंने डायरेक्टली यूज किया है, डायरेक्टली लाइट को पावर सप्लाई दे दिया है, उसके वजह से उसके जो बैकअप है वो बहुत कम है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। इस पे कुछ डाउट है किसी को? ओके, सो ये कुछ मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैं फोटोज नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि ये अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। अभी घर बैठा ऐसे ही सोचा, मैं जैसे अभी घर पे वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत जा रही है, मीन्स लैपटॉप कंपनी से मिला हुआ है, तो ये लैपटॉप हार्डली 3 घंटे चल जाता है लाइन जाने के बाद। और जब इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार लैपटॉप तो 3 घंटे चलेगा, अभी मीटिंग तो मेरे 4 घंटे बाद है, अगर लाइट नहीं आई तो उसके वजह से बहुत डर जाते हैं अंदर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। हर कोई इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए मैंने एक लैपटॉप पावर बैंक बनाया।
अभी जो भी मैं ये लैपटॉप पावर बैंक बना रहा हूँ, और ये जो आप बोल रहे होंगे कि 850 रुपीज में कैसे आपने ये बना के दिया है, क्योंकि इसमें से एक सेल जो रहता है ना लिथियम आयन का, वो 110 रुपीज का, मीन्स 110 रुपीज का एक सेल रहता है। तो मैंने उसमें 3 सेल यूज किए हैं जो 6000 mAh के होते हैं। सो 3 सेल अगर यूज कर रहे हैं तो इतने कम कॉस्ट में कैसे दे रहे हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मेरे कुछ इन्वेंशंस है, अब जब मैं इसको रजिस्टर कर दूंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें कैसे टेक्नोलॉजी यूज की है। और ये लैपटॉप पावर बैंक, ये चीज बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। लगभग 1 महीना कंटिन्यू वर्क करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट बन गया है। एंड इसका टेस्ट भी किया है मैंने हर एक टाइप के लैपटॉप पे। अभी कुछ फास्ट चार्जिंग लैपटॉप्स आते हैं, कुछ 150 वॉट के आते हैं, कुछ 65 वॉट के आते हैं। तो हर एक इस पे ये अच्छे से वर्क कर रहा है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो अभी जो वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज है उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि ऐसा कोई भी पावर बैंक चाहिए जो इजीली अपने लैपटॉप को चार्ज कर सके। एटलीस्ट एक बार भी फुल कर दिया ना तो भी बहुत है, क्योंकि 3 घंटे लैपटॉप की बैटरी चल जाती है। एंड आप अगर 3 घंटे के बाद अगर 5-10% पे है तो उसके बाद अगर आप एक 100% चार्ज कर दोगे उस बैटरी को तो और 3 घंटे चलेगी, मीन 6 आवर्स का बैकअप हो गया। तो ये बहुत सेफ है टाइमिंग की। 6 आवर्स अगर बैकअप है तो मैं फील करूंगा कि हाँ थोड़ा सा सेफ है, ठीक है। Am I audible? Yes, sir. Okay, sorry. So ये एक चीज है। और ये जो लैपटॉप पावर बैंक मैंने बनाया है, ये किसी भी लैपटॉप को 2 बार फुल चार्ज कर सकता है, 0% to 100%, ठीक है। 2 बार फुल चार्ज करता है। अगर 2 बार चार्ज करता है एंड ये लैपटॉप पावर बैंक अगर सिर्फ आपको 1200 रुपए में मिल जाए, सिर्फ 1200, एंड इसके साथ 3 इयर्स की वारंटी मिल जाए, तो कितना सही बात होगा। मतलब कोई भी सोचेगा यार मैं भी ले लूंगा ये चीज। सिर्फ 1200 में अवेलेबल है, 3 इयर्स की वारंटी है, एंड सबसे बढ़िया बात है कि 2 बार लैपटॉप को चार्ज करता है। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं उस पे बहुत कम मार्जिन रखी है, क्योंकि अभी जो फेज चल रहा है वो सिर्फ पब्लिसिटी का फेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ कमाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पब्लिसिटी करनी है। आज तक मैंने इस मतलब मेरा जो स्टार्टअप है उसमें सिर्फ 6 to 7 lakhs का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी प्रॉफिट को लेकर। मीन्स जैसे एक चीज को मैं बेचता हूँ, अगर मैं 100 रुपए की चीज बनाता हूँ, ठीक है, वो मैं 200 रुपए में बेचूंगा, तो उससे जो मुझे मिला है 100 रुपए प्रॉफिट, वो मैं साइड के में रखे, जो 100 रुपए उसमें मैंने पहले इन्वेस्ट किए थे वो फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा मैं उसमें। तो ऐसे करके अभी तक मिनिमम 6 to 7 lakhs इन्वेस्ट किया है। बट जब स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने कुछ तो भी 1300 का सामान लाया था, 1300 मैक्सिमम। तो वहां से स्टार्ट हुआ है। एंड एक बार अगर स्टार्ट होता है तो बहुत सी चीजें, बहुत राहें इजी हो जाती है अपने लिए, ठीक है। सो जब कोरोना का काल था, तब जब फर्स्ट वेव था कोरोना का, तब इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई हैंड सैनिटाइजर्स की, एंड उसमें भी ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर चाहिए था। जो भी मार्केट में अवेलेबल थे वो बहुत महंगे थे, 3000-4000। तो मैंने भी एकदम सस्ता, मतलब 500 से लेकर 1200 तक, आपको जिस क्वालिटी में चाहिए उस क्वालिटी में हैंड सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मैंने बनाया। एंड अभी बहुत दिक्कत जाती है जो भी घर पे वर्क करते हैं उनके लिए, वाईफाई राउटर जो है, जैसे ही लाइट जाती है वाईफाई बंद हो जाता है, फिर मोबाइल पे आना पड़ता है। तो जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए वाईफाई में पैक होता है, मोबाइल में बहुत कम डेटा होता है, तो उनके लिए वो भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए वाईफाई राउटर को भी पावर बैकअप के लिए कुछ तो भी चाहिए। तो एक्चुअली मेरे जो सुपरवाइजर है अभी कंपनी में, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा कुछ मुझे बना के दो जिससे मेरा वाईफाई राउटर का बैकअप चल जाए। तो मैंने उनको फर्स्ट वाईफाई राउटर पावर बैंक गिफ्ट किया था। सो ये चीजें अभी उनकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने सोचा नहीं था कभी, क्योंकि मेरे पास राउटर नहीं है, मैं मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करता हूँ। सो मुझे ये क्लिक नहीं हुआ कि ये भी एक जरूरत हो सकती है। जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो मुझे पता है कि लैपटॉप अगर
चार्ज नहीं रहा तो दिक्कत होती है। बट ये वाईफाई राउटर का नहीं पता था, क्योंकि मैंने वो यूज नहीं किया तो वो क्लिक नहीं हो रहा था मेरे से। बट जब से मेरे सर ने बोला मुझे कि हाँ ये मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 7 दिन में, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही लैपटॉप और बैंक पे वर्क किया था, तो मेरे लिए बहुत ईजी है ये वाईफाई राउटर पे वर्क करना। मैंने एक बहुत अच्छा राउटर बना के उनको दिया है, उसकी मैंने टेस्टिंग भी की है फ्रेंड्स के यहाँ, बट पता नहीं वो कितना वर्क कर पाएंगा वहां पे। तो जैसे ही फीडबैक आता है सर से, या फिर मैंने और 2-3 बना के मेरे फ्रेंड्स को दिए हैं, तो मैं फीडबैक पे वर्क करता हूँ। जैसे मुझे फीडबैक आता है, मीन्स टॉर्च पे फीडबैक आया था मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने टॉर्च बनाया था, तब जो टॉर्च है वो कभी कभी बंद पड़ जाता था, मतलब कभी कभी बंद हो जाता था अपने आप ही। तो मुझे मतलब साइड का जो लाइट था उसका वो चालू रहता था, बट जो सामने वाला था वो बंद हो जाता था, ये दिक्कत थी। मैंने उसमें बहुत काम किया, फिर भी वही चीज हो रही थी। बाद में हमको समझा जो हम वायर वो लेके जा रहे हैं, उस वायर में से वो जो वायर था उसकी जो थिकनेस थी वो बहुत कम थी, तो वो इतना करंट सप्लाई नहीं कर पा रही थी, कभी कभी ओवरलोड हो जाता था हीट की वजह से, एंड वो करंट सप्लाई हो जाता था, इसलिए वो टॉर्च बीच बीच में बंद हो जाती थी एंड चालू हो जाती थी। वो वायर का इशू था। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, उस पर कंटिन्यूसली काम करते रहना है। जैसे अभी समर चालू है, कूलर की बहुत रिक्वायरमेंट है, एंड रूरल एरिया में, नॉट ओनली रूरल एरिया, सिटीज में भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं अभी। तो मैंने इस पे वर्क किया था सोलर कूलर पे, लगभग लास्ट समर से ही वर्क कर रहा हूँ मैं इस पे, लेकिन इसको 1 साल लगा मुझे ये कूलर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कूलर में जो नॉर्मल मोटर आती है वो डायरेक्टली लगा दी मैंने, तो उससे क्या हो रहा था, बैकअप नहीं मिल रहा था। और इसमें लिथियम आयन सेल्स का यूज किया मैंने सोलर कूलर में, मतलब सोलर प्लेट से पहले बैटरी चार्ज होंगी, फिर उसका यूज हो जाएगा। ठीक है, बट जैसे लिथियम आयन सेल इसमें यूज हुआ है तो बैकअप बहुत कम दे रहा था, जैसे ट्रेडिशनल मोटर अगर यूज किया तो मैंने बहुत रिसर्च करके खुद घर पे मोटर डिजाइन की। मीन्स मोटर की बॉडी जो है वो मैंने खरीदी, उसके अंदर वाइंडिंग्स एंड ब्रशेस वो जो सारे रहते हैं वो सारे चेंज कर दिए, एंड फाइनली हम सक्सेसफुल रहे इस चीज में, एंड फाइनली हमने एक सोलर कूलर बनाया जिसका बैकअप बहुत ज्यादा है। आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, लगभग 2 घंटे हो गए, सो मुझे फास्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, सो आई विल ट्राई। तो ये मेरा वॉशिंग बकेट कन्वेंशन था। अभी भी ये रजिस्टर नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। तो ये था, ये भी 12 वोल्ट से चलता है एंड 3 to 4 आवर्स चलता है। 3 to 4 आवर्स मतलब लगभग 10 से 15 मिनट में आपके कपड़े धुल के हो जाते हैं। तो ये इसमें एट ए टाइम एक पैंट और एक शर्ट डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एट ए टाइम 2 कपड़े धुल सकता है क्लीन अच्छे से। ये भी प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं किया है, बट बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और वाईसीसी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर है मेरे तरफ से। जो भी हॉस्टलेट स्टूडेंट्स है और जो भी अगले बार अभी जॉब फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स है वो कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाएंगे, तो घर से पहली बार जाएंगे जॉब करने के लिए, तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही सस्ते कीमत में। तो ये जो बकेट है ये सिर्फ 800 रुपीज में है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। एंड उसके साथ आपको सेल्स भी मिल जाएंगे, उस सेल्स का आप एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। उस बकेट में पावर बैंक भी है, एंड वहां से आप एक्सटर्नल कुछ लाइट वाइट चलाना हो 5 वोल्ट का, वो भी चला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था एक चीज प्रोडक्ट से, एंड विद इन 3 months मैं एक मास प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया इन सारी चीजों का। ये जो चीजें आप देख रहे हो इनका मास प्रोडक्शन है हमारे पास। अभी जो लीड एसिड बैटरीज, लिथियम बैटरीज जो मैं बाहर से लाता था, अभी वो मैं खुद बनाता हूँ। एंड एक टिप देना चाहूंगा आपको, जो लैपटॉप रिपेयरिंग के जो शॉप्स रहते हैं वहां पे लैपटॉप की पुरानी बैटरीज मिलती है। ठीक है, हार्डली वो 70 रुपीज कॉस्ट करेंगे या 100 रुपीज कॉस्ट करेंगे। उस एक बैटरी में 4 से 6, कुछ बैटरी में 9 सेल्स रहते हैं। डेल के जो पुराने बैटरीज है ना उसमें 9 सेल्स रहते हैं,
सैमसंग के जो बैटरीज रहते हैं उसमें 6 या 4 सेल्स रहते हैं, ठीक है। तो उन सेल में से एक आधी सेल खराब हो जाता है। अभी वो किसी दिन अगर फिर से चांस मिले तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे होता है, या फिर मैं वीडियो अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लिथियम आयन बैटरीज वहां से कलेक्ट कर सकते हो, मीन्स वहां से ले सकते हो। लैपटॉप की जो लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप रहती है उनके पास पुराने बैटरीज रहते हैं, वो बहुत चीपली मिल जाता है। तो 70 रुपीज में अगर एक सेल मिल गया तो उसमें 4 सेल रहेंगे, एक बैटरी में 4 सेल रहेंगे बैटरी पैक में, ठीक है। मिनिमम 4 सेल रहता है, अगर उसमें से एक भी खराब निकल गया तो 3 सेल रहेंगे 70 रुपीज में। तो लगभग ये 23 रुपीज का एक सेल अपने को आएगा, समझ रहे हो। अगर नए सेल लेते हो आप तो बहुत महंगा जाएगा, और नए सेल लेने हो तो हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ही चीप कॉस्ट में अवेलेबल है, अभी हम बनाते हैं। सो लास्ट में एक क्वेश्चन है जो होप आप सब लोग इस पे सपोर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन ये है कि जो भी घर पे जो अपना कचरा निकलता है उसको घर पे ही अपन डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी पॉसिबल वेज होंगे तो आप प्लीज इस मेल आईडी लिख लो, आप इस मेल आईडी पे शेयर कीजिए। कोई भी मतलब मीन्स एकदम इलॉजिकल सी भी बात हो गई, वो मीन्स आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे ढकेल दूंगा उस कुएं में तो वहां पे जाके वो खत्म हो जाना चाहिए, तो ऐसी इलॉजिकल चीजें होगी तो भी एक्सेप्टेड है। बस इस पे मेल कीजिए, हम ये वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी कचरा वाला जो आता है हर दिन उसके इस पे कचरा डालना पड़ता है, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो क्यों ना आप घर पे ऐसा कुछ बना लो जिससे डिकम्पोज हो जाए घर पे कचरा। तो डिकम्पोजिशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर वो 2 महीने ले रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, 2 महीने का कचरा कहाँ पे आप स्टोर करके रखोगे। तो डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर सिर्फ 1 दिन में हो जाना चाहिए, ताकि दूसरे दिन फिर से वो रेडी हो जाए अगले दिन का कचरा डिकम्पोज करने के लिए। तो इस पे हमारा अभी वर्क चल रहा है, तो अगर आप सजेशन देंगे तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। एंड मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहता हूँ, लाइव सैंपल्स। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। यस सर। और वीडियो दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, मुझे कहीं भोग नहीं दिख रहा है। ओके, सो ये जो बैटरी है ये मैंने बनाई थी, एंड इसमें ब्लूटूथ स्पीकर का ऑप्शन है, एंड पावर बैंक है, और जो भी स्क्रीन पे था वो ये टॉर्च है। एंड लिथियम सेल्स जो रहते हैं वो इस टाइप के रहते हैं। ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हब है ये लिथियम सेल्स का। एंड ये लीड एसिड बैटरी है, ये भी हमारे पास बनती है। एंड आपको दिखा दूं मैं, ये लैपटॉप का पावर बैकअप है। लैपटॉप जो चार्ज करता है ना वो ये है, सिर्फ 1200 रुपीज में अवेलेबल है। अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं किया, ये रजिस्टर होने का है। जैसे ही रजिस्टर होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप ले सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। सो एंड दिस इज अ सोलर कूलर, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये सोलर कूलर है, यहाँ पे मैं ऑफिस के लिए दिन भर बैठता हूँ, मैं फ्री एनर्जी यूज करता हूँ, मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आती है। और जो मैं लैपटॉप चार्ज करता हूँ वो भी सोलर पे चार्ज होती है। और यहाँ पे जो भी चीजें मैं मोबाइल वगैरह यूज करता हूँ वो सारी चीजें सोलर पे यूज की जाती है। एंड सोलर प्लेट बहुत बड़ा नहीं लगा है, सिर्फ 50 वैट पे सोलर प्लेट, जो हार्डली 2200 में अवेलेबल हो जाएगा। वो सोलर प्लेट यूज करके मैं ये चीजें यूज करता हूँ सारी। मेरे पास 2 लैपटॉप रहते हैं, 2 लैपटॉप फुल चार्ज हो जाते हैं दिन भर में। और ये जब भी मैं ऑफिस के लिए बैठता हूँ यहाँ पे, तो ये जो कूलर है ये दिन भर चालू ही रहता है। तो ये क्लीन एनर्जी का यूज मैं कर रहा हूँ।
आप भी क्लीन एनर्जी का यूज करना स्टार्ट कीजिए। और आज का सेशन होपफुली आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका आप आंसर्स दोगे। एंड थैंक यू। ओवर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. यस यस यस। Devang, you can begin with the vote of thanks. The real meaning of engineering lies not only in innovative thinking, but through its application in real life, where it can positively impact the lives of others. This is the spirit which IEEE every day tries to imbibe each of its members. Sir, people like you are an embodiment of this very spirit. I humbly thank you for your time with us today. You have given us some very serious goals as to how we should strive to use clean energy, leading to your personal examples in the very final moments of your presentation today, as how we can rely solely on clean energy. Thank you for your time, sir, today. And last but not the least, थैंक यू thank you all the participants for your patience and thank you, everyone.